जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈਏ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ US ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਕਿੱਟ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਮ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, 150 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ A to Z ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, इतना सारा लव यू गुरु जी, इतना सारा लव यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी। और मैं आज का ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरुदेव के चरणों में हैं। और सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग जो है वो ट्यूसडे था उस दिन। एक्चुअली मैं मेरा नाम नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरा नाम मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे जितने बार भी सत्संग आते हैं वो बिना नाम के ही आते हैं, बिना नाम के मैं भेजती हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। और दूसरा क्या है कि सत्संग जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे एक दिन के बाद शेयर कर रही हूँ मैं ये। मैं अपना प्रोफेशन तो नहीं बोलूँगी कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैं जब अपनी जॉब पे थी कल ट्यूसडे के दिन, तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण मतलब मैं थोड़ा सा मेरी एनर्जी जो थी वो डाउन थी, क्योंकि मेरे घर के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक आता है। तो सडनली जो है ना वो बॉडी की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है, थोड़ा सा मूड ऐसे हो जाता है। तो ना मैं मतलब वर्क प्लेस पे भी मेरे अराउंड ये ब्लैक मैजिक के कारण थोड़ी सी मतलब ये पॉलिटिक्स और ये सब लोग, आपको पता है कि जो लोग आप पे जेलस होते हैं वो आपका नाम खराब करने में लगे रहते हैं। हालांकि मैं मेरे सत्संग में किसी की बुराई करके मैं इन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहती हूँ। तो ना तो थोड़ा सा मेरी मतलब एनर्जी लेवल डाउन था। तो हमारे गुरुजी, मुझे तो इतनी मतलब हंसी आई, मतलब मैं सारा दिन मतलब उस चीज़ को सोच के हंसती रही। और मतलब गुरुजी की मुझे नॉटीनेस के ऊपर मतलब हैरत हो रही थी कि किस तरह से वो हमारा मूड ठीक करते हैं। तो हालांकि बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग जो है वो मतलब जो भी ब्लेसिंग आए मतलब बतानी नहीं चाहिए, ब्लेसिंग्स वो करके रखनी चाहिए। आई डोंट नो, बहुत कन्फ्यूजन है कि बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। कि सत्संग में सुनती हूँ यूट्यूब में तो लोग अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो कल वाली ब्लेसिंग है ये बड़ी ऐसे फनी और नोटिस ब्लेसिंग है, तो मैं इसको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले भी जब भी मैंने ब्लेसिंग शेयर की हैं तो मैंने कभी ब्लेसिंग तो मैंने शेयर की है, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं बोला कि मतलब क्या ब्लेसिंग मिली। तो ना कल क्या हुआ कि मैं मतलब अपने वर्क प्लेस पे थी और मतलब जैसे मैंने बोला कि मूड थोड़ा सा मतलब डाउन था, क्योंकि अभी जस्ट दिवाली भी गई है। दिवाली के टाइम में भी बहुत ब्लैक मैजिक जो है वो आया हुआ है। तो मतलब जो कि गुरुजी से मिलने के बाद ना वो फील हो जाता है कि मतलब गुरुजी वो फीलिंग करवा देते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि क्या हुआ है तुम्हारे ऊपर और मतलब मतलब क्या चल रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें ना अब हमको
गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि वो सारी चीज़ों का आभास हो जाता है आपको कि कब कोई अटैक हो रहा है, कब कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो ना जस्ट अभी दिवाली गई है, तो दिवाली के बाद से मतलब कुछ ना कुछ है ही। और दूसरी बात ये है कि मुझे मतलब ऐसी फीलिंग है कि एवरीडे मेरे घर में कुछ ना कुछ जो है वो मतलब किया जाता है और आता है। मतलब मैं ऐसा मतलब फ़ील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ मैं। तो ना तो मेरा जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारी झंझटों के कारण ना मेरा थोड़ा-सा मूड वैसे था, मतलब ऐसे लग रहा था बॉडी में जान नहीं, एनर्जी मुझे पूरी डाउन लग रही थी। तो ना मैं मतलब एक लाइक एक बच्चे ने ना मतलब एक बच्चे ने अपना, जहाँ मैं कहीं पे थी, एक बच्चे ने ना मेरे मतलब किसी दूसरे को देने के लिए अपना जो इरेज़र था, वो फेंका। तो ना मतलब किसी ने माँगा होगा तो उसने फेंका मतलब। तो जो जो इरेज़र था, वो इरेज़र ना मेरे बालों में मतलब अटक गया। वो मेरे ऊपर मेरे ऊपर गिरा इरेज़र। तो मैंने निकाला, मुझे लगा कि जैसे किसी चीज़ ने मुझे हिट किया। तो मैंने निकाला, तो मैंने सत्संगों में सुना है कि अगर लाइट फ्लिकर होती है ना, मतलब टिमटिमाती है लाइट, तो इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, या मतलब वो हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जैसे मैंने इरेजर वो निकाला, हाथ में लिया मैंने, तो वो ना लाइट वाला इरेजर था, लाइक फ्लिकर हो रहा था वो। तो ना मुझे मतलब उस बच्चे को कुछ बोलने की बजाय मुझे ना मतलब मुझे हंसी आ गई। और हँसी आ गई, और जैसे वो लाइट फ्लिकर हुई तो मैं तो समझ गई कि ये मतलब गुरुजी का कारनामा है। तो ना मुझे गुरुजी के ऊपर इतनी हँसी आई, और मैंने गुरुजी को बोला भी, मैंने कहा गुरुजी आप क्या मतलब आप इतने आप इतने नॉटी भी हो। तो ना मीन्स व्हाट आई वांट टू शेयर कि अ, उनको जब पता लग जाता है कि लाइक मेरा बच्चा जो है वो चीज़ों के कारण अपसेट है, और मतलब डिस्टर्ब है, तो वो मैं ये देख रही थी कि वो किस तरह से मतलब हमको हँसाने की कोशिश करते हैं, या किस तरह से मतलब उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग जो थी वो मतलब ऐसे इस तरह से छेड़ के अपनी ब्लेसिंग दी कि मतलब मेरे मुँह पे जो है वो स्माइल आ जाए। और ना उसके बाद मुझे सारा दिन मतलब मैंने देखा मेरा मूड जो था वो थोड़ा-सा लाइट हुआ, और उस चीज़ को याद कर के मुझे मतलब हँसी भी आ रही थी बीच में कि देखो गुरुजी मतलब कितने मतलब नॉटी हैं, या कितने नॉटी वे में भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, या मतलब किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। तो मतलब ये बहुत प्यारा-सा सत्संग जो है, वो ब्लेसिंग जो है वो मैं पूरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी कि मतलब इस तरह से गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और तो मेरा कल उन्होंने पूरा दिन जो है वो मतलब एक मेरा मूड जो था वो उन्होंने मेरा मतलब चिल किया मूड उन्होंने मेरा, कि मतलब तुम ऐसे टेंशन में मत रहो, और हँसो मतलब थोड़ा तुम। तो इस तरह से उन्होंने मेरा जो था वो मूड को लाइट किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद भी जब मैं मतलब घर आई तो अ, हालाँकि मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन थी, मतलब गुरुजी ने मुझे हँसा दिया था, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन थी कि मैं घर आने के बाद भी मैं मतलब जस्ट मैं मतलब रेस्ट करने को गई, तो मैं मतलब सोई, तो मैं मतलब ऐसे सोई कि मेरी ना मतलब सोने के बाद क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश हो जानी चाहिए, राइट? तो मैं मतलब जब सोई तो मेरी ऐसी बॉडी थी कि मेरा ना उठने को नहीं हो रहा था, मुझे मतलब ऐसे हो रहा था। तो ना अ, उठने को नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और मैंने गुरुजी को बोला भी, मैंने कहा गुरुजी ये मतलब बॉडी में क्या मतलब ये अजीब-सा कुछ अजीब-सा ये हो रहा है कि मतलब बिस्तर छोड़ने को मन नहीं हो रहा है। और 1-2 दिन से मैं संगत जी मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा जो कुत्ता है ना, मतलब मेरे घर में जो कुत्ता है वो मैं
2 दिन पहले भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो गुरुजी के स्वरूप के पीछे मेरे घर में विंडो है एक। तो ना वो सडनली जो है वो विंडो की तरफ देखकर भौंकने लगी। तो आई डोंट नो क्या रीज़न था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये घर तो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, तो इस घर में अब आई डोंट नो कि मतलब मतलब जादू टोने के थ्रू जो है वो भूत प्रेत चीज़ें भेजी जाती हैं, आई डोंट नो। क्योंकि कभी-कभी साया वगैरह आता है घर में, तो वो चीज़ें तो आजकल थोड़ी 10-15 दिन से नहीं है। तो आई डोंट नो ये कोई चीज़ किसी ने भेजी थी जो कि कुत्ते को दिख गई गुरुजी के स्वरूप के बाहर विंडो पे, तो वो ना एकदम से मतलब कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया। तो मैं देखने लगी, मैं मतलब गुरुजी के सामने बैठी हुई थी मैं उस स्वरूप के आगे। तो मैं देखने लगी बाहर, मैं मुझे लगा कि शायद मतलब हो सकता है मतलब पीछे गुरुजी आए हों खिड़की के बाहर, मतलब कबूतर स्वरूप में या कुछ। तो मैं देखने लगी विंडो से बाहर के कुछ है क्या। तो वो कुत्ता अजीब सा विंडो की तरफ मेरा भौंक रहा था, और उसके बाद रूम की तरफ भी देख के भौंकने लगा। पता नहीं अब क्या था उस जगह पे, मुझे नहीं पता। उसके बाद कल मैं ये जो ब्लेसिंग वाली बात तो बता रही हूँ, ये कल के दिन की बात है कि ना मतलब घर में आकर मतलब मेरी बॉडी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो हालाँकि मैं गुरुजी को लेटे-लेटे बोल भी रही थी कि गुरुजी आप ही ने उठाना है, अब देखो क्या है, क्या नहीं, मतलब कोई मतलब दोबारा आज ब्लैक मैजिक हुआ है जिसके कारण मैं हिल नहीं पा रही हूँ या क्या है, तो ये आप ही देखोगे, आप ही उठाओगे। तो ना उसके बाद कल रात को फिर से मेरा कुत्ता जो था वो ऐसे सडनली एकदम से मतलब भौंका, और उसके भौंकते ही ना मतलब मैं तो अंदर थी रूम में लेटी हुई, वो बाहर भौंकी। तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ देखकर भौंकी और मतलब क्या था। तो तो सडनली ना कुत्ते के भौंकने के बाद एकदम से मेरी बॉडी में ना मतलब जिसको बोलते हैं कि थोड़ा-सा मुझे अपनी बॉडी एक्टिव फ़ील हुई। तो मैं उठी फिर बिस्तर से, और दूसरा क्या थोड़ा-सा मुझे मतलब वो भी हो गया, क्या मतलब एक होता है ना डर भी आ गया मेरे मन में, कि मतलब कहीं घर में कुछ है तो नहीं, मतलब यही भूत-प्रेत से रिलेटेड चीज़। तो मुझे डर भी आ गया मन में, और मैं मेरे पति अंकल और मेरा बेटा अंकल कहीं मतलब उस टाइम पे बाहर जा रहे थे। तो पहले तो मैंने मेरा शरीर नहीं हिल रहा था, तो पहले तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन जैसे ये कुत्ता भौंका ना, तो मुझे थोड़ा-सा डर भी लगा, और मैं मतलब मैं एकदम से बेड से उठ भी गई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं-नहीं मैं आ रही हूँ साथ में। क्योंकि मैं मतलब घर में ना अकेले नहीं रहना चाह रही थी। क्योंकि पुराने मेरे घर में भी वो वाले सत्संग तो मैंने शेयर किए भी हैं। मेरे पुराने घर में भी जो है वो मुझे ना 2-3 बार ऐसे हुआ था कि मतलब ना किसी चीज़ का मुझे मतलब उन उस घर में मेरे आभास हुआ था। तो वो तो चलो गुरुजी ने मेरे से वो घर छुड़वा दिया था, और ये घर फिर मुझे ब्लेस किया था। रेंट के ऊपर ही हूँ मैं, मतलब मैं कहीं बाहर कंट्री में रहती हूँ, तो रेंट के ऊपर ही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये घर ब्लेस किया था। तो इस घर में मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। लेकिन फिर कल मतलब जैसे मतलब कुत्ते का भौंकना हुआ, तो मेरे बॉडी में हरकत आ गई एकदम से, मतलब बॉडी मेरी एक्टिव हो गई, और मैं मतलब घर से जो है वो उन लोगों के साथ में निकल गई। अच्छा उसमें भी आई डोंट नो वो क्या था, कि घर में कुत्ते को कुछ दिखा था, या मतलब या गुरुजी आए थे, मतलब क्योंकि अब कुत वैसे तो मैंने सुना है कि कुत्तों को अगर ये आत्माएँ दिखें तो उनको पता चल जाता है। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मतलब क्यों वो कुत्ता भौंका और क्यों मेरी बॉडी में हरकत आई। और मैंने देखा कि मैं उन लोगों के साथ गई ना, तो मेरे घर में सिर्फ़ मैं ही जुड़ी हूँ। तो ऐसे तो बोलते हैं कि मतलब गुरुजी जब एक को जोड़ते हैं तो पूरे घर को जोड़ देते हैं। तो आई डोंट नो उस वक़्त में गुरुजी घर में आए थे, उन्होंने मुझे उठाया या क्या हुआ? लेकिन मैं मतलब इनके साथ चली गई, पति अंकल के साथ और बेटे अंकल के साथ। तो वो पता नहीं अब गुरुजी ने भेजा था मुझे उठा के, क्योंकि जब मैं क्योंकि होता क्या है जैसे हम लोग जुड़े हैं, तो
मुझे क्या लगता है कि हमारे साथ जो है ना वो गुरुजी ज़्यादा चलते हैं, फैमिली के साथ भी चलते होंगे हमारी, लेकिन हमारे साथ जो है वो हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं हमारे साथ। तो ना पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों मतलब उन दोनों के साथ भेजा कि जब मैं उनके साथ गई तो ना अ, थोड़ा-सा हमारा जो है वो स्लाइट सा जिसको बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट होने से भी बचा। कि मतलब बड़ी ज़ोर का नहीं, लेकिन मतलब अगर मेरे हस्बैंड अंकल टाइम पे ब्रेक नहीं लगाते तो हल्की-सी गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी से जाकर जो थी वो टकरा सकती थी अगर वो ध्यान नहीं देते। तो आई डोंट नो गुरुजी ने मुझे उठाकर अ, इसलिए भेजा था मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए या क्या था? एनीवे जो कुछ भी था, मैं हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो भी गुरुजी पूरा दिन प्रोटेक्शन देते हैं। पूरा दिन गुरुजी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मेरी साँसें चल रही हैं या मेरे घरवालों की साँसें चल रही हैं, तो वो गुरुजी की देन है। अदरवाइज़ हम लोग शायद इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि हमारे ऊपर इतना हेवी ब्लैक मैजिक आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गुरुजी ने एक्सपोज़ किए हैं, उसमें से अ, खुद के घर के लोग भी हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, जिनकी गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है, कुछ लोगों से मुझे दूर भी करवाया हुआ है। तो ये गुरुजी की ही मेहर है कि हम लोग अभी तक प्रोटेक्टेड हैं और ज़िंदा बचे हुए हैं। तो एवरीडे गुरुजी से बस मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी आप इसी तरह से प्लीज़ बचाए रखें, और जो भी प्रॉब्लम्स ये ब्लैक मैजिक के कारण मेरी जॉब में क्रिएट की जाती हैं या हस्बैंड अंकल के कारोबार में क्रिएट की जाती हैं, या हो सकता है बच्चों की बच्चे जहाँ स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, मुझे लगता अगर मेरे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ, तो अगर मेरे ऊपर उस जादू टोने का इतना असर होता है कि मेरे अराउंड प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि पति अंकल और बच्चों के साथ भी दिन भर प्रॉब्लम चलती होंगी। हालाँकि मुझे पता है गुरुजी और भगवान उनको भी वहाँ पे माता रानी मतलब उनको भी प्रोटेक्ट करते होंगे। लेकिन मेरा ये है कि अगर मेरे साथ चलती हैं प्रॉब्लम्स तो उनके साथ कितनी चलती होंगी। तो गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी हम सबको अपनी प्रोटेक्शन दे के रखें। बच्चे बाहर निकलते हैं बार-बार अकाल मृत्यु ये वो बहुत मैसेज आते हैं इस तरह के। तो प्लीज़ इस घर को प्रोटेक्शन दे के रखें। मैंने आपके चरणों में अपना घर डाला हुआ है। आपने आपके चरणों में अपना घर समर्पित किया है। आपने ही हम सबकी रक्षा करनी है और बच्चों की रक्षा करनी है, उनके करियर के ऊपर जो बंधन डाले हैं, वो खोलने हैं, उनके पीछे जो ये नॉन-वेज वगैरह चीज़ें लगाई हुई हैं, वो आपने उनसे छुड़वानी हैं और कभी भी बच्चे जो हैं वो नशा और इस तरफ ना जाएँ, आपने प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण मुझे नहीं पता उनके पीछे क्या-क्या चीज़ें लगा दी जाएँगी। बहुत बार मुझे सुनने को मिलता है कि रोज़ मतलब बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु की उसकी साजिश रची जा रही है। तो जो भी किया जा रहा है प्लीज़ बच्चों को आपने प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे से पहले उनको आप अपनी मतलब गोदी में लेके रखें और उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल नहीं मानते हैं। बेटी आंटी के ऊपर तो मेरी इतनी नेगेटिविटी है हावी और विश करना हावी है कि वो तो आपका नाम तक भी नहीं सुनना चाहती है। तो आप बच्चों को प्रोटेक्शन दें। पति अंकल के ऊपर जो भी जितना भी पति अंकल को कंट्रोल करने के लिए जितना भी वशीकरण किया गया है या हमसे छुड़वाने के लिए मतलब हमारे फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस करने के लिए जितना भी उनके ऊपर वशीकरण किया गया है या उनके ऊपर रोज़ या हमारे ऊपर रोज़ मारण क्रिया या जादू टोना भेजा जाता है फैमिली को ख़त्म करने के लिए, प्लीज़ इन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करें। आप ही नहीं करनी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। प्रोटेक्शन दें, आप कैसे दें मुझे नहीं पता। अब आपने देनी है और भक्ति मार्ग पर चलाना है। इन इन बाकी जो मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हैं इनको भी अपने साथ जोड़िए।
इनसे भक्ति करवाइए, इनको अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स देकर अपने साथ जोड़ें। और मेरे घर से एवरी डे मेरे घर में इम्प्रूवमेंट हो कि हम सत्कर्म कर सकें, दूसरों की भलाई कर सकें। मैं कभी भी किसी के हाथ की तरफ ना देखूं, उल्टा मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़रूरतमंदों की फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं या तन से सेवा कर सकूं। मुझे इतना मतलब सामर्थ्य देना, इस लायक बनाना कि जो दुनिया में मैं आई हूँ या मेरे बच्चे आए हैं, पति अंकल आए हैं, हमारा जीवन आने का सफल हो, हमें सही राह दिखाएं। और जो लोग जादू टोना और ये सब कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। उनको आपने खुद देखना है मालिक, आप देखोगे उनको। और हमें बस ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर करें, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और मेरे घर को धर्म कर्म के मार्ग पर चलाएं, अच्छी राह पे चलाएं। और ताकि हमारी ये जो सोल्स हैं, मेरे घर में 5 सोल्स हैं, इन 5 सोलों का आप उद्धार करें ताकि हम ये जन्म मरण के चक्कर से हम लोग छूटें और हमको अपने भक्ति मार्ग पर चलाएं। मेरी आपसे यही, मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर यही मेरी आपसे बार बार विनती है। और इसी तरह से आप हमारी रक्षा करें। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। वो बहुत मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं हमेशा और पूरे संसार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें मालिक। और अपना भी आप ध्यान रखें। और ये जो आप नौटी हरकतें करते हैं, इसी तरह से आप हमको अपने सानिध्य में, अपने प्यार में रखें। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को अमृत वेले का सुप्रभात। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। उसे स्वीकार करो बाबा। और अमृत वेले की पहली हाजिरी आपके चरणों में बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार बाबा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी आपके चरणों की सेवा स्वीकार करना बाबा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। हे सतगुरुदेव, आपके चरणों में प्यार से, भाव से, श्रद्धा से नमन है मेरे दाता। कल शाम से थोड़ा तबीयत की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन आप संभाल लेते हो बाबा और सब अच्छा कर देते हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला गुरु का प्यार, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला गुरु का प्यार, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या लागे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे दाता। नशा था तुम्हारे नाम का जिसमें हम खो गए, हमें पता भी नहीं चला कि हम कब डुगरी वाले के हो गए। संगत जी मैं तो कहती हूँ छोड़ दो सब मालिक पे अपनी जिंदगी की डोर। तू क्यों डोलता है, हमें डोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस श्रद्धा भाव से परमात्मा से समर्पित होकर उनकी नाम स्मरण सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना करते रहिए। हमारा गुरु परमात्मा महाशिव जी है और हम उनके बच्चे हैं। उनका वरदानी हस्त हमारे सर पे है, उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। सब कुछ संभाल लेगा बाबा, सब कुछ संभाल लेगा। बाबा कहते बाबा आपका मैसेज भी है, तेरे दिल की हर टूटी उम्मीद को मैंने जोड़ दिया है। बाबा पूरा विश्वास हो गया है, पूरा नशा आपका मेरे पे चढ़ गया है बाबा। हर दिन हर वेले हर क्षण आपका शुक्राना शुक्राना है और पल पल आपकी यादों में, आपके स्मरण में, आपके चिंतन में समय बीतता है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता। बाबा एक रास्ता बंद होता है तो मेरा रब 4 रास्ता खोल देता है। रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू देखण लेन दे। मेरा सदगुरु रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेन दे। गुरु जी हर पल हर क्षण साथ में रहते हो और साथ में हो उसका एहसास पल पल दिलाते हो, उसका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमात्मा। आपके चरणों में बिठाने का शुक्राना, मुझ पे दया करने का शुक्राना, अपनी प्यारी बेटी बना के संगत बनाने का शुक्राना। जिस दिन से आपने हाथ थाम के अपना बच्चा बना लिया उसी दिन मेरा जीवन का जैकपॉट लगा हुआ है बाबा। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने मेरे को अभी सुबह डांट भी लगाई है। आंटी लगता है तूने कसम खा रखी है कि तू मेरी कोई भी बात प्यार से नहीं सुनेगी जब तक तुझे ठोकर नहीं मिलेगी। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, एक लास्ट चांस है तेरे लिए, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने कुछ गलती की है तो। बाबा आप हो तो मेरा सब कुछ है, आप नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ बाबा। गलती हो गई हो तो क्षमा करना। फिर आगे आपका अभी अभी का ही मैसेज है अमृत वेले का। क्यों परेशान है बेटा, 2 दिन हो गए तूने शुक्राना ही नहीं किया। भरोसा रख सब चंगा होगा, तेरी उम्मीद से नहीं, तेरी उम्मीद से भी ज्यादा होगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, कोई चाह कर भी छू नहीं सकता। याद रख और शुक्राना न करना भूली। जब चारों तरफ अंधेरा हो, सॉरी वो नहीं है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका बाबा। जब आप बैठे हो मुझे कोई चिंता नहीं है बाबा, और मैं क्यों चिंता करूं। सब मेरी चिंता तो आप हर ही लेते हो बाबा, और मैं आपका ही बच्चा हूँ, पल पल आपके चरणों में ही हूँ बाबा। मैं जरा भी दूर नहीं रह सकती हूँ अभी। बेटा तेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है, अब तेरे हर काम में जीत होने वाली है। जीवन में तेरे बहुत जीवन में तेरे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। बहुत
रो लिया, अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। तुझे वह हर खुशियाँ मिलेगी जिसकी तू हकदार है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी करना, जो भी मैंने जब आपको समर्पित सब अपने आप को कर दिया है, अब सब आपको ही देखना है बाबा। मैं आपकी भक्ति, आपका स्मरण कीर्तन और कभी किसका बुरा ना करूं, कभी जीवन में घमंड ना लाऊं और कभी मैं किसी का बुरा न सोचूं, किसी की चुगली न करूं और किसी के दुख का कारण न बनूं। इसके लिए भी आपका शुक्राना है और आपकी बताई राह पे चलूं, आपके आदेशों का पालन करूं, जो आपको अच्छा लगे वही काम करूं। हे दाता, आपने मेरे जीवन में आके मुझे जब से हाथ थामा है तब से अभी तक जो जो मुसीबतें में से आपने मुझे बहुत मुसीबतों में से बाहर निकाला है, बहुत मेरे सहायता की है। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों के लिए भी आपने बहुत आशीर्वाद दिए, उसके लिए भी आपका शुक्राना। कल बेटी के लिए भी एक सत्संग है बाबा, वो भी सुनना है, मैं भी सुनूंगी कि तेरी बेटी तेरी बताती नहीं, उसे बहुत तकलीफ है लेकिन वो तुझे बताती नहीं है। तू एक शुक्राना कर दे और उसका जो भी है मैं उसका सब प्रॉब्लम हल करूँगा बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। हे परमात्मा, न जाने आप न होते तो क्या होता मुझे पता नहीं है। मेरे बिना आप तो परमात्मा ईश्वर हो साक्षात, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इस बच्ची को आपने हाथ थाम के उसका जीवन को धन्य बना दिया है। उसके जीवन के पल पल आपने हर दुख दर्द गम सब हटा के उसकी राह में कांटे बिछे थे, राह को आपने सरल बना दिया है। मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बाबा, पूरा विश्वास बढ़ता है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है बाबा। और आपके बिना जीना दुश्वार है बाबा, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। पल पल आपकी मेरे साथ हो, ऐसे मुझे एहसास होता है। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और इसीलिए मुझे डर नहीं है। परमात्मा आपने सब संभाला है और संभालोगे, मुझे पता है। और मेरी गलती कुछ हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि आपका कोई ऐसा मैसेज आ जाता है ना, फिर मैं डर जाती हूँ बाबा। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी मैं आपका ही बच्चा हूँ, धीरे धीरे वो भी समझती हूँ बाबा। और मैं कोई गलती नहीं करूँगी और आपकी बताई राह पे चलूँ, धर्म की राह पे चलूँ, अच्छे कर्म करूँ, अच्छा काम करूँ, सभी के प्रति प्रेम भाव विश्वास का रिश्ता रखूँ, मेरी वाणी में नम्रता रखूँ बाबा। आपके साथ आपका सानिध्य में रह के मेरा गुस्सा एकदम गया है बाबा, मैं नहीं करती हूँ गुस्सा। और आपका सिमरन सत्संग भक्ति शुक्राना हमेशा मेरे साथ रहे, उसका मुझे दान दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय, मेरे दाता सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु महाराज, मेरे गुरुपा ने मुझे अब इस लायक बनाया कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे हर जगह ब्लेस किया है, हर जगह ब्लेस किया है, हर जगह ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे घर को भी संवार दिया, मेरा घर भी अब बहुत सुंदर होता जा रहा है। बस गुरुपा आप हमारे घर में हो और आप मुझसे सत्संग कब कराओगे मेरे घर में? आप घर तो वो आपका ही है, उसमें सत्संग कब कराओगे मेरे गुरुपा? और बस उसमें सत्संग हो जाए, बड़ा सा छोटा सा, जैसा भी मेरे गुरुपा चाहें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। क्योंकि छोटी छोटी सेविंग करके मैंने एक बड़ा अमाउंट देखा पहली बार अपने अकाउंट में खुद का, जिसमें सिर्फ मैं
मेरा हक है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मेरी झोलियाँ, हमारी झोलियाँ ऐसी भरते रहना और सबको ब्लेस रखना। बात पैसों की नहीं होती, बट बात खुशी की होती है, जो खुद जैसे आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतना कुछ अचीव कर सकूं, इतना मैं खुद से जमा कर सकूं। तो इसलिए इस खुशी का कोई मतलब करोड़ों में भी कोई वर्णन नहीं है, जो आपने मुझे ये खुशी दी है कि मैं अपने आप से कुछ कर सकूं। जो मुझे गुरु महाराज आपने इतना नींबू की तरह निचोड़ के इतना जो तराशा है ना गुरुपा, मैं इसके लिए आपको कभी भी कितना भी शुक्राना करूं, मैं आपको मतलब उस चीज़ को मैं फुलफिल नहीं कर सकती, और मैं उसके लिए स्पीचलेस हूँ। मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे गुरुपा महाराज के लिए। बस गुरुपा, बस आपने मुझे सब कुछ दिया, बस बनाए रखना, जो भी दिया उसको बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे दिए उन्हें बनाए रखना, घर परिवार दिया उन्हें बनाए रखना, सबके दिलों में प्यार बनाए रखना, और मैं किसी के काम आ जाऊँ, मुझे इतनी इतनी मुझे वो देना, शक्ति देना, और इतना इतना बड़ा दिल देना कि मैं किसी के काम को मना ना करूं। बस गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज। 7 बजने में 1 मिनट बाकी गुरु महाराज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा। गुरु महाराज आपका हुक्म आया है कि तुरंत शुक्राना करो। 3 दिन भारी हैं, 3 मिनट में कट जाएंगे, और तेरी संतान ही तेरा नाम रोशन करेगी। गुरु महाराज आप कहते हैं ना कि उसको प्यार से समझाओ, प्यार से ही वो सफल होगा। तो गुरु महाराज बस ये आप चमत्कार ही कर दीजिए कि पति अंकल और बेटे में इतना प्यार हो जाए गुरु महाराज कि पति अंकल अपने बेटे को आगे बढ़ा पाए। और सबसे पहले तो आप उनके नाना हैं, और जो आप सब कुछ कर सकते हैं तो दोनों में प्यार भी कर सकते हैं। गुरु महाराज जब घर खुशहाल होता है तो बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। बेटा अपने पापा के साथ बहुत प्यार से रहे। अभी वो गया था वृंदावन, वहाँ से अभी वापस नहीं आया। गुरु महाराज उसको ठीक ठाक घर लाइएगा, और पति अंकल उसे खुशी खुशी उससे बोले, और बेटा भी उनसे खुशी खुशी बोले। महाराज उसको जो भी काम करा के देना है सब आपके ऊपर अब मैंने छोड़ दिया है। बस आप ही देखिएगा कि कोई चीज़ खराब भी ना हो और चले, क्योंकि फिर पति अंकल मुझे बातें सुनाएंगे। गुरु महाराज, गुरु महाराज आप पल पल हमें ब्लैक मैजिक वालों से बचा रहे हैं। अभी मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी, तो आपके जैसे थॉट आया कि इधर देख, तो मैंने ऊपर देखा तो बटरफ्लाई थी गुरु महाराज, ब्राउन कलर की। आज भी गुरु महाराज एक बटरफ्लाई मरी है, और आप बहुत हमारे घर का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरु महाराज। और मैं यही सोचती हूँ कि कितना कष्ट है जो आप हमारा ले रहे हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आती। गुरु महाराज आज बेटी का फ़ोन आया, कुछ भाई के काम की ही बात करी थी, तो मैंने कुछ उससे गुस्से में कि तुम्हारे पापा ऐसे कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, कहीं बेटा गलत है तो कहीं पापा गलत है गुरु महाराज। तो मैंने एक तरफ से चाहे उनकी बुराई की या अच्छाई की मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे और अपनी बेटी से माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। हमने वैसे ही बहुत कर्म खराब किए हुए हैं, और कर्म खराब नहीं करना चाहते गुरु महाराज। आप अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज, मेहर करिएगा, शुक्राना करिएगा। और आप बार बार सुना रहे हैं कि शादी आ रही है, और वाकई में हमारे परिवार में शादी है गुरु महाराज, और उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ रही है गुरु महाराज। तो आप ही को उससे बचा के रखना है। अब आप ही देख लीजिए कि उसे लेके आना है कि कैंसिल कराना है। सब आप पे ही छोड़ दिया गुरु महाराज। आगे भी आपने कैंसिल कराया था, अब भी आप ही देख लीजिए गुरु महाराज, और मेरे इन लॉज को भी देख लीजिए।
आप बहुत बारी सुना चुके हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं एक बात बार बार सुनाई जाती है तो वही सच होती है। मेरी मेड को भी आप ही देखिए गुरु महाराज की वो ज़्यादा नेगेटिव बातें वहाँ से आके यहाँ ना किया करे, क्योंकि वो वहाँ भी काम करती गुरु महाराज। कल आप मुझे बर्थडे पार्टी में लेके गए थे गुरु महाराज, तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी तो बोली तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बाद में मैंने आके सोचा ये तो गुरु महाराज ही थे होंगे जिन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। आज गुरु महाराज घर से माल कहीं बाहर जा रहा है, आप उस गाड़ी के साथ ही जाइएगा, क्योंकि आज मेरी बेटी बता रही थी कि उसके पति अंकल कह रहे थे कि अब तुम्हारी दुकान में वो चीज़ नहीं रह गई है। गुरु महाराज हमें नहीं पता कौन हमारी इज्जत के साथ बाहर खिलवाड़ कर रहा है, आप उन सबको देख लीजिए और मेरे पति अंकल की आंखें खोलिए गुरु महाराज। महाराज कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर सत्संग सुनती जाती हूँ, कभी इधर सोचती हूँ कभी उधर सोचती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता महाराज। पाठ करा के कड़ा प्रसाद को भोग लगाई गुरु महाराज। बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया गुरु महाराज, जो उसके साथ में दोस्त हैं गुरु महाराज, आप ही देख लीजिएगा कि अगर वो बच्चे सही नहीं हैं तो ये खुद ही उनसे दूरी बना ले गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए, इसका आलस्य। और गुरु महाराज आप बीमारियों के बहुत से सत्संग सुना रहे हैं, और वाकई ये बात है कि इसको स्पाइन की दिक्कत है, और गुरु महाराज आप उसे कैसे चलाते रहते हैं, क्या दर्द होता है लेकिन फिर भी वो चलता है, कैसे चलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप उसके साथ हैं गुरु नानक महाराज। आप अपना हाथ उसके सिर पर रखे रहिएगा, ठीक ठाक उसे घर लेके आइएगा गुरु महाराज। अभी तक कोई उसका फ़ोन नहीं आया है, उसकी रक्षा करिए गुरु महाराज, रक्षा कवच बनाइए, दोनों बेटियों की रक्षा करिएगा। आप बोल रहे हैं मैंने पूरे परिवार पर, पूरे घर पर रक्षा कवच बनाया हुआ। गुरु महाराज एक चूहा है, वो घर से निकल ही नहीं रहा है, बाहर ही नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता मुझे नहीं पता। बाहर कितनी बार मैंने हटाया है, बच्चे बोलते दवा डाल दो, पर मैं दवा नहीं डालना चाहती गुरु महाराज। अब आप ही देख लीजिए क्या बात है गुरु महाराज। उस दिन कमरे से बेटे पे छिपकली निकली जिसकी पूछ आधी नहीं थी, तो पति अंकल, अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, पति अंकल उठा के उसे नीचे ले जा रहे थे, और मेरे मन में आ रहा था कि गुरु जी ने बोला था छिपकली को मत हटाना, तो वो अपने आप ही उनको उठा के छिपकली को ऊपर ले गए, बोले बाहर डालूंगा तो कोई खा लेगा, ऐसे ऊपर डाल देता हूँ तो जिंदा रहेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि उन्होंने बाहर नहीं किया और ऊपर छत पे करके आए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आज बहुत सी चीज़ें आप घर से निकलवा रहे हैं, बहुत आप कह रहे थे उस दिन की धागे हैं अलमारी के नीचे, पर मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा था। कल चूहे को निकालने के चक्कर में जब डंडा मेड ने उस अलमारी के नीचे डाला, तो उसमें वो कुछ राखी के धागे थे जो सफ़ेद और पीले रंग के, उसमें बाल लगे पड़े थे गुरु महाराज, तो वो आपने वो धागे वहाँ से निकलवाए। अभी भी आप बहुत कुछ बोल रहे हैं कि अलमारी से ये नहीं निकाला, तो गुरु महाराज आप बताइए, कभी हम वो सत्संग सुन पाते, कभी नहीं सुन पाते। रक्षा करिए गुरु महाराज, बेटियों की रक्षा करिए, गलत रास्तों से बचाइएगा, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी इज्जत आए, कोई झूठ ना बोले, अगर कुछ झूठ है तो हमें साफ साफ बताएं गुरु महाराज। छोटी बेटी की भी रक्षा करिएगा गुरु महाराज, और उस लड़के से उसे दूर रखिएगा, और लड़के को भी गलत रास्ते से दूर रखिए गुरु महाराज। उसके पापा उसको खूब मोटिवेट करें गुरु महाराज, और वो आप ही करवा सकते हैं, आप ही काम। कल गुरु महाराज गुस्से में आप बोलते हैं घर की बात किसी को मत बोलनी चाहिए, तो गुस्से में कल महाराज मैंने किसी को बता दी कुछ बातें, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। कौन आ रहा है हमारी बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए, कौन आगे बढ़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता गुरु महाराज। पति अंकल अपने आगे कोई बात नहीं सुनते, जहाँ जहाँ वो माल भेज रहे हैं वहाँ से पैसा भी वापस आए गुरु महाराज, कहीं हमारा पैसा फंसे ना गुरु महाराज। जो भी गाड़ियाँ जो भी माल जा रहा है उनके साथ आप जाइए, पति अंकल के अंदर निम्रता बख्शिए, थोड़ा हंसी मजाक किया करें, घर का वातावरण अच्छा हो गुरु महाराज।
शुक्राना महाराज, शुक्राना, 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 हर वेले शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, टाइम शुक्राना। बेटे के सिर पर हाथ गाड़ी आप ही चला के लेके आइएगा गुरु महाराज, अब मैं फ़ोन करने जा रही हूँ गुरु महाराज, आप ही देख लीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना।